Hello guys, you are most welcome in the another class of the solid state. Now today's topic is metallic solid. What does meant by the metallic solid? हमने इसका डेफिनेशन पहले पढ़ चुके। होता यूं है मेटेलिक सॉलिड कि जिस क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स ऑफ मेटल्स होते हैं, जिसके कांस्टेंट एलिमेंट एटम्स ऑफ मेटल होते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता, उनको बोलते मेटेलिक सॉलिड। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एटम्स ऑफ द सेम मेटल and they are held together by means strong metallic bond are called as metallic solid. First of all, we have to deal with the metallic bonding. What does meant by the metallic bonding? Now we know that if we are talking, if we compare between the atoms of metal and atoms of non-metal, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे in respect of their size, तो होता यह है कि ये जो मेटल के एटम्स होते ये बड़े होते हैं और नॉन मेटल के जो एटम्स होते वो छोटे होते हैं। मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में more than 4 electrons होते हैं generally, and that's why we can say here as the metal atom are bigger in size, the valence electron, or we can say the electrons which are situated in the outermost orbit, they are far away from the nucleus. And in case of the the atom of non-metal, these electrons are closely or they are nearer to the nucleus. Now we know that due to the presence of proton, this nucleus carries positive charge और इसके ऊपर charges are negative, so there exists the force of attraction between electron and nucleus. But here जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होने के कारण इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है that is very weak, means that electron is loosely held with the nucleus. But if you are talking about the atom of the non-metal, electrons are close to the nucleus, and that's why there exists the greater force of attraction which is holding that electron to the nucleus. That is the electrostatic force of attraction is much strong, and hence यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को in order to take out from the valence shell we will require more energy, मतलब इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। और जब इसकी बात करेंगे तो मेटल में दिस इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो रहेगा वो लेस रहेगा, कम रहेगा। आईपी का मतलब होता मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब सिंपल वर्ड में बोलेंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती उसको बोलते आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे लेस है और यहाँ पे ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटल के एटम में कम होता और आयोनाइजेशन पोटेंशियल नॉन मेटल के एटम में भाई ज्यादा होता, एंड दैट्स व्हाई जब हम मेटल क्रिस्टल की बात करेंगे, जब हम मेटल क्रिस्टल की बात करेंगे, सपोज ये सोडियम का एटम है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एज this electron is
weakly held with that nucleus. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत वीक है, एंड दैट्स व्हाई it is to be said that the electron which are present in the outermost orbit of the metal, in metal crystals, these electrons are said to be free or mobile or delocalized electron. Why they are called a free electron? Because that electron which is present in the outermost orbit of the metal, that electron is free to move from one place to the another place. These electrons are free. This electron never restricted for that particular atom. वो किसी एक एटम को बिलोंग नहीं करेंगे. जब मेटल क्रिस्टल की बात करेंगे तो ये एटम these are free to move from one place to the another place, and that's why they are called a free electron, mobile electron or a delocalized electron. ऐसे ही जब मैं बात किया सोडियम के मेटल की, तो ऐसे ही ऐसा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन. नाउ ये तो बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन. ये फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये जो मेटल का एटम बचा है, फिर से बताता हूं, लास्ट वाला ऑर्बिट के फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, मोबाइल इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बचा है मेटल का एटम, आप उसको मेटल कर्नल्स बोला जाता. These are metal kernels and these are their free electron. This free electron can move from one place to the another place. These electrons are never be restricted to the particular atom, and that's why these are delocalized. एक जगह नहीं रहते, करके हम उसको delocalized electron बोलेंगे. Now there exists the force of attraction between its own electron as well as within the sphere of electron. उसके अराउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता. नो डाउट दिस सिंगल अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज द सिंगल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैविंग द मच लेस स्ट्रेंथ. उसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत बहुत कम है एक का. जैसा फॉर एग्जांपल मैंने एक थ्रेड ले लिया, उसको खींचा, थ्रेड टूट जाएगा क्योंकि जो उसके मैग्नीट्यूड, उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत कम है. मगर वहीं मैंने एक धागा, दो धागे, ऐसे आई हैव टेकन द नंबर ऑफ थ्रेड्स, 1000 ऑफ थ्रेड, 100 ऑफ धागे हमने ले लिया, थ्रेड ले लिया, और फिर अगर मैंने उसको खींच के देखा तो नाउ दैट बंच ऑफ द 100 ऑफ थ्रेड्स विल बिकम अ रोप, एंड दैट रोप कैन नॉट बी, हम उसको अगर खींचेंगे, पुल करेंगे तो दैट कैन नॉट बी ब्रोकन. उसको कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 पीसेस. हम उसको फिर उसको दो टुकड़े बांट नहीं सकते, क्योंकि ड्यू टू द एग्रीगेशन, ड्यू टू द दैट बंचिंग ऑफ द hundreds of thread, the strength of that rope becomes so strong that is unable to break. उनको हम तोड़ नहीं सकते. वैसा ही ये सिंगल फोर्स था, वीक था, जस्ट लाइक द थ्रेड था. मगर जब द स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस हम बोलेंगे, उसके अराउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे सब के लिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा. तो एक फोर्स, 2, 3, 4 ऐसे number of electrostatic forces of a generate there simultaneously, and due to which the strengthening of that particular electrostatic force will going to be happen. यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बनने वाला है. वो जो स्ट्रेंथ बना, वो जो पावरफुल, वो जो enormous force of attraction generate हुआ between the metal kernel and these mobile electrons, that enormous मजबूत स्ट्रेंथ वाला जो बॉन्ड बनेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, द बंच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, that is called as metallic bond. The bunch of electrostatic force of attraction which makes them very very strong force, and that's why हम बोलेंगे कि ये मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है भाई. तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एग्जिस्ट between the mobile electron and the metal kernels
इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। और इसी मॉडल को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इसलिए बोलेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम, इट हैज only one valence electron. That's why one metal atom can give a single electron. But if you are talking about the aluminium, single aluminium atom, there are 3 mobile electrons. मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। तो वन एल्यूमिनियम एटम gives 3 mobile electron in such a way, if such atoms are there which are having more than 2-3 electrons in their outermost orbit, there will be more number of electrons and less number of metal cation, means metal kernels, and that's why it is appear that there is a sea of electron. There is a sea of electron where this all the metal kernels are remain embedded. This appears so, and that's why this concept or this structure is called as electron sea model. Now, the metallic bonding makes that metal very strong. मैं फिर से एक बार बताता हूँ। The electrostatic force of attraction which is exist between the metal kernel and mobile electron is called as metallic bond. The electrostatic force of attraction which is exist between the metal kernel and mobile electron is called the metallic bond. सिंगल अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा तो दैट इज वेरी वीक यार। But if we are talking about the bunch of this electrostatic force of attraction for a single cation, it makes that force very tough, very strong, and that's why this is one of the reason why this metal having higher melting point, boiling point as well as density, because due to the metallic bond. ये बहुत टफ है, ये बहुत हार्ड है, ये ब्रिटल नहीं है। अगर मैं बात करूंगा भाई ब्रिटल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये मेटेलिक बॉन्डिंग नॉन डायरेक्शनल है। ये क्या चीज होती है मैं तुमको बाद में बताता हूँ। नॉन डायरेक्शनल है, चलो ठीक। हाँ, तो मेटल के बारे में हम बात करेंगे तो हम एक पहला ही बोल देंगे मेटल की प्रॉपर्टी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. Now, what are the reasons why they are capable of conducting the electrical energy when the potential applied to that particular metal piece? Because these electrons are always free to move from one place to the another place. Wherever potential is applied across the metal piece, what happens under that influence of the electric field, पोटेंशियल की वजह से जब हमने अप्लाई करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर मूव होंगे, मतलब ही द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द करंट। यहाँ पे करंट यहाँ से इधर बहेगा। एक्चुअली वो अलग बात, कन्वेंशनल करंट और होल वगैरह वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। सिर्फ इतना ही समझ लो कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द मेटल प्लेस, एंड दैट्स व्हाई दैट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिस्पांसिबल टू कंडक्ट द करंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। द सेम थिंग इज अप्लाइड व्हाई द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो। फिर और एक बात करेंगे, मेटल पढ़ चुके हम 10th स्टैंडर्ड में। लस्टर, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, दे आर लस्टर्स। नाउ व्हाई द मेटल आर लस्टर्स, क्या होता कि व्हेन दे आर एक्सपोज टू द सनलाइट और एनी अदर एनर्जेटिक लाइट, एनी अदर लाइट और सनलाइट, जब वो सनलाइट को एक्सपोज होते तो ये जो इलेक्ट्रॉन है
मोबाइल बोले या उसके अंदर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बोलो, दे गेट एक्साइटेड, जिसकी वजह से दे एब्सॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी एंड दे गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर इन लेवल. बट दैट इलेक्ट्रॉन विच आर एक्साइटेड, ये लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन था, रेडिएंट एनर्जी आ गई, एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन किया. अगर उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया तो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, दैट जंप्स ओवर द हायर ऑर्बिट. मगर दैट इलेक्ट्रॉन नेवर परमानेंट स्टे देयर, वो कभी वहां परमानेंट रहेगा नहीं. आफ्टर सम टाइम इट गेट्स ऑटोमेटिकली रिटर्न टू बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने आप फिर से वापस आ जाएगा. बट while doing so, जब वो वापस आएगा तो previously the energy which is absorbed by that electron to get excited at the higher in level, जो एनर्जी उसने गेन किया था हायर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए, हायर ऑर्बिट को जाने के लिए, वो एनर्जी ये वापस छोड़ना पड़ेगा. अगर ये छोड़ेगा नहीं तो वापस आएगा नहीं. एंड इसलिए जो एनर्जी उसने लिया था वो वापस गिव अप, छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये मेटल शाइन होते हैं. और जनरली ये एनर्जी विजिबल रीजन से एब्सॉर्ब करता है, करके हमको शाइन दिखेगा. अगर अल्ट्रावायलेट या कोई अलग रेडिएशन से करेगा तो हमको वो आंखों से रेडिएशन नहीं दिखेंगे, तो उसका लस्टर से कोई रिलेशन नहीं है. फिर हम बात करते हैं, दूसरा भी लॉजिक इसके लिए बताया जाता है कि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर वाइब्रेट अलोंग देयर मेन पोजीशन. भाई अपने मेन पोजीशन में ये वाइब्रेट होते रहते. अब क्या होता, जैसा ही एनर्जी आएगी तो ये एनर्जी गेन करता एंड उसका जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड है ये बढ़ जाता. ये वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये एनर्जी को गेन करता एंड कुछ देर बाद में उसी एनर्जी को छोड़ भी देता, करके ये जो मेटल्स है ये मेटल को शाइनी लस्टर रहता है. फिर और एक मेटल की प्रॉपर्टी है, बोले मेटल्स आर malleable and ductile. Means metal can be hammered into the sheet, malleable and ductile, and can be drawn into the wires. हम मेटल का वायर बना सकते, हम मेटल को हैमर करके उसकी शीट बना सकते. मतलब मेटल ब्रिटल नहीं है, वो मिलेबल है, वो डक्टाइल है, मगर ब्रिटल नहीं है. हैमर करने के बाद में उसका टुकड़ा होने वाला नहीं है, कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द पीसेस. व्हाट हैपेंस when we apply any force on the metal surface? तो होता यूं कि ये जो ऐसी लेयर है, ये ऐसी लेयर है, when we apply shearing force or any other force or we hammer the metal, what happens, this one layer slips over the other. ये जो एक लेयर है, ये एक लेयर, ये दो लेयर में बोलूंगा, चलो ठीक, ये दूसरी लेयर है. तो क्या होगा, ये जो एक लेयर है ये लेयर के ऊपर से स्लिप हो जाएंगी. एंड जब स्लिप होता तो होता क्या, देखो भाई, ये ऐसा बन गया. अब तुम बोलोगे कि सर भाई ये तो अलग हो गया, तो ये टुकड़ा होके अलग हो जाना चाहिए, मतलब उसके टुकड़े होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है. अब इसके लिए रीजन क्या है, तो याद रखना, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ द मेटालिक बॉन्ड. नॉन डायरेक्शनल नेचर मतलब क्या, कि जैसा ही ये लेयर यहां से स्लिप हो जाएगी तो यहाँ के जो मेटल कर्नेल्स है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके साथ मेटल, इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेंगे. यहाँ का मेटल इसके साथ करेगा, यहाँ का मेटल इसके साथ करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा नेटवर्क ऑफ मेटेलिक फोर्सेस जनरेट हो जाता एट द जंक्शन ऑफ द टू स्लाइड्स लेयर. ये जो दो स्लाइड्स लेयर थी, इसके जंक्शन पे ऐसा नेटवर्क बन जाता. अब भाई ये इलेक्ट्रॉन तो इधर था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन बदल गया. अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्शन बदल गया. मतलब वेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डेवलप एट दैट प्लेसेस. एंड दैट्स व्हाई इसको, ये मेटल बॉन्डिंग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां बदलती जाती.
वैसा ही जैसा स्लिप ओवर द लेयर हो गया तो इसका डायरेक्शन पहले ऐसा था तो डायरेक्शन बदल गया। एंड इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जहां जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा वापस वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टैब्लिश कर लिया। एंड करके दैट मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड दिस मेटल कर्नल हियर, इधर के पीस के इलेक्ट्रॉन, इधर के पीस के मेटल कर्नल, यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ के मेटल कर्नल, दे आर फॉर्मिंग द नेटवर्क ऑफ मेटेलिक बॉन्ड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहां पे जनरेट हुआ दैट एक्ट्स जस्ट लाइक द glue between the two pieces and that's why the piece यहां से स्लिप हो गया that cannot be detached। ऐसा और हैमर करेंगे तो और लेयर स्लिप हो जाएंगी मगर एक दूसरे दूर होने वाली नहीं है। और इसकी वजह से हम गोल्ड के फाइन वायर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके तार बना सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स एंड कैन बी हैमर्ड इनटू द शीट। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। अब देखो भाई हमने बोल दिया कि यहाँ पे ये सारे जो मेटल की प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती, ये जो इनके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर having the high density, they will have the high melting and boiling point, they can be malleable and ductile, means can be hammered into sheet as well as can be drawn into the wires। This is all about the metallic bond। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आता है या हम ये करेंगे भाई, देयर आर सम मेटल, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज है ये बहुत वाइड है यार, एकदम 3500 के आसपास, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके तो समवॉट माइनस में भी है। अब भाई मेटल की बात करेंगे सर ये इतना है, एक तो माइनस में तो यहाँ इतना ज्यादा है, तो ऐसा क्यों? That melting point, boiling point totally depend upon the number of valence electron that metals have in their outermost orbit। क्वेश्चन है कि भाई सोडियम कैन बी कट बाय द नाइफ, why potassium can be cut by the knife and why aluminum cannot be cut by the knife। भाई चाकू से काट सकते फास्फोरस को, पोटेशियम को। रीजन ये है कि सोडियम में ओनली 281, पोटेशियम में, सोडियम में यहाँ हम बात करेंगे सोडियम की तो उसके आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन रहता, और पोटेशियम की बात करेंगे तो उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता। तो वो यहाँ पे जो मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए 1 atom contributes only 1 electron and that's why the strength of the metallic bonding is not so much stronger as compared to the aluminum because 1 aluminum atom can contribute 3 electrons। मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता तो उसी वक्त एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता। ये 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे 3 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब जो मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है ये एल्यूमिनियम में एज इट कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन तो उसकी बहुत ज्यादा रहेंगी। और ये फॉस्फोरस जो सॉरी सोडियम कैन बी कट बाय द नाइफ, नॉट फॉस्फोरस, हम मेटल की बात कर रहे हैं। और पोटेशियम कैन बी कट बाय द नाइफ बिकॉज they contribute only 1 electron and that's why metallic bonding is strength है that become the weaker as compared to the aluminum as aluminum contribute 3 electrons। This is all about the metallic solid। एक टॉपिक हमारा रह गया है molecular solid, we will see later। Thank you very much।